Jai Hind students, welcome to online class of Shriram Public School. Myself Shweta Srivastav, your maths teacher. In the previous class, I was explained question first and second. Now today, we start from question third. Question third, evaluate 5/9 to power minus 2 into 3/5 to power minus 3 into 3/5 to power 0. Clear? First of all, here base is different. So now firstly we solve the negative power because base is different. Then question third, let's start. 5/9 to power minus 2 into 3/5 to power minus 3 into 3/5 to power 0. I repeat again. 5/9 to power minus 2 into 3/5 to power minus 3 into 3/5 to power 0. Clear? Now first of all we convert the negative power into positive. तो now do the reciprocal. 5 नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 5/9 बन जाएगा 9/5 और जो निगेटिव पावर 2 था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ओनली 2 इंटू 3/5 5/3 में कन्वर्ट होगा और जो निगेटिव पावर था ये पॉजिटिव हो जाएगा. पावर 0 3/5 टू पावर 0. पावर 0 की वैल्यू बताए हैं प्रीवियस क्लास में, इट्स डायरेक्ट 1. क्लियर? पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. नाउ अगेन एक्स पावर 2 पावर 3 9/5 to power 2, it means 9 into 9. Power 2 it means 9 into 9 upon 5 square it means 5 into 5 into 5 into 5 into 5 because here is power 3 upon denominator 3 into 3 into 3. ये क्यूब जो है ये पावर 3, ये 5 and 3 बोथ की पावर 3 है. इट मीन्स 5 3 times, 3 also 3 times. Now any values cutted, then cut, otherwise direct do the multiply. 5 cancel out, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 is 9. Clear? Again 3 1 is 3, it's 3 1 is 3, it's here is 3 left, here is 5 left. 3 into 5 equals to 15. Clear? So now student, in this question also firstly negative power convert in positive and after then do the multiply. Clear? Now question 4, minus 2/3 minus 2/3 to power 2 to power minus 2 minus 2/3 to power 2 and whole to power minus 2. Power to power do the multiply. In question second also one first second third all parts same. So now second part we start from second part. Second part is question fourth second part minus 1/3 to power 2 again to power minus 2 and again whole to power minus 1. Clear? So now firstly we solve the small bracket and mid bracket. It means power to power, powers are multiply. It means minus 1/3 to power minus 4. 2 2s are 4. Power to power are multiply. It means minus 4. Again whole to power minus 1. Again power to power are multiply. It means minus 1/3 to power minus 4 into minus 1. Power to power are multiplied. It means minus 4 into minus 1. It means minus 1/3
to power 4. 4 1 ja 4, negative negative positive. Now in the previous class I was explained, if negative to power even number, then answer always positive, and negative to power odd number then answer always in negative. क्लियर. जब कोई सपोज निगेटिव फ्रैक्शन है और उसकी पावर इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन पावर जो है इवन के फॉर्म में है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, सारे पेयर्स बन जाएंगे और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. बट सपोज निगेटिव की पावर ऑड नंबर होता है, निगेटिव फ्रैक्शन है उसकी पावर ऑड नंबर है, तो हमारा 1 निगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट रह जाती. तो जिस कंडीशन में हमारा आंसर निगेटिव में आता. यहाँ देखिए पावर इवन नंबर है तो सब एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. 1 to power 4 वैल्यू इज़ 1 एंड 3 to power 4, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 and 27 3 ज़ा 81. Clear? Its value is 1/81. Got it? Now move on the next question. Is question 5th, 4th each part try to solve, and question 5th it's also negative power. First of all we convert in positive and after then solve. It's like simplified type questions, but it's also very easy question. Start. Question 5th, mid bracket in a small bracket 1/3 to power -3 minus 1/2 to power -2, mid bracket again division symbol 1/4 to power -3. I repeat again, curly bracket 1/3 to power -3, 1/2 to power -2, 1/3 to power -3 minus 1/2 to power again -3. वन अपॉन थ्री to power -3, 1/2 to power -3, it's also -3, divide by 1/4 to power -3. Clear? 1/3 to power -3 minus 1/2 to power -3 divide by 1/4 to power -3. Negative power curly bracket convert in positive 3/1 to power 3 minus 2/1 to power 3. देखिए रेसिप्रोकल किया, निगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, रेसिप्रोकल किया, निगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में. क्लियर? नाउ क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, डिवाइड का सिंबल लगाया, अगेन निगेटिव पावर 4/1 किया, निगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में. क्लियर? नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. क्लियर? डिवाइड 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, it's 64. Now do the subtract, 27 minus 8 is 19, divide by 64, it's 19/64. क्लियर? वैल्यू क्या आ गई, 19 फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिव पावर को हमने क्या किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर देन
सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, वैल्यू क्या हो गई हमारी 19/64। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अदर पार्ट्स सॉल्व योर सेल्फ। क्वेश्चन 5th ऑल्सो, 6 ऑल्सो सेम क्वेश्चन, 7 ऑल्सो सेम क्वेश्चन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 is different. Look here. Question number 8 is 2 to power 0 plus 3 to power minus 1 into 3 square. 2 to power 0 plus 3 to power minus 1 into 3 square. 2 to power 0 की वैल्यू, पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किए तो रेसिप्रोकल कर दिए, वैल्यू क्या हो गई 1/3 इंटू, अगेन राइट करते हैं, 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज किया इंटू 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन बन गया, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 राइट किया। 1 और 3 का एलसीएम लिया तो वैल्यू क्या आ गई 3। 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1 इंटू 9। 4/3 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 4 3 ज़ा 12। आंसर क्या हो गया हमारा 12। तो नाउ स्टूडेंट अदर पार्ट्स सॉल्व योर सेल्फ। क्लियर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज ऑल्सो कंपेरिजन क्वेश्चन। दिस टाइप क्वेश्चन को हम कंपेयर करके ही, कंपेरिजन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। इफ़ एनी टाइम वेरिएबल इन गिवन इन टर्म्स ऑफ पावर and find the variable value, then this type of question we compare the both side and make the base equal. If base is already equal then only compare the power. If base is different then we make the same base, make the equal base and after then compare. Like question देखिए, it's very easy question। यहाँ देखिए क्या है, दोनों साइड्स क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 टू पावर -1, 5/3 टू पावर -5, 5/3 टू पावर 3x। यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5/3 टू पावर -4 इंटू 5/3 टू पावर -5 इक्वल्स टू 5/3 टू पावर 3x। दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ 5/3 सेम बेस सेम राइट करेंगे, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -4 एंड -5। ये क्या हो जाएगा 5/3 टू पावर 3x। 5/3 टू पावर -9 इक्वल्स टू 5/3 पावर 3x। क्लियर। 5/3 टू पावर यहाँ क्या हो गया -9, पावर्स ऐड हो गए, -4 -5 -9, यहाँ 5/3 टू पावर 3x। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ बेस इज़ इक्वल या सेम लिख सकते हैं, if base is equal then power also equal। if base is equal then power is also equal। compare the both side को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों साइड का बेस हमारा क्या है, बेस क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर भी हमारा इक्वल होगा। बेस 5/3 तो पावर भी इक्वल होगा, इट मीन्स -9 इक्वल्स टू 3x, देन x इक्वल्स टू -9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वैल्यू इज़ -3। क्लियर। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। तो नाउ स्टूडेंट अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 13 अदर क्वेश्चंस को भी सेम टाइप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 में भी क्या है, 2x + 1 है, डिवीज़न सिंबल है, तो इसको पहले हम 5 का स्क्वायर बनाएंगे। अब 5 का स्क्वायर में बेस सेम हो जाएगा
तो पावर क्या हो जाएंगे, डिवीज़न का सिंबल है मिड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 2x + 1 -2 में कन्वर्ट होगा। इसको भी 5 के पावर में लिख सकते हैं, 5 का क्यूब करेंगे, आफ्टर देन कंपेयर करेंगे। क्लियर? ट्राई टू सॉल्व व्हेन यू हैव डाउट, आस्क इन इवनिंग क्लास। क्लियर स्टूडेंट? कंप्लीट एक्सरसाइज 2A. Thanks student, class is over.